Hello everyone. In this video, we will see three-phase delta connection in which the quantities are line and phase quantities. So line current and voltage and phase current and voltage. So uh, this is a this is the diagram of three-phase delta connection. So at left hand side, look here. At left hand side, the quantities are phase quantities. यहाँ पे जो quantities हैं वो phase quantities हैं. Like IRY, IYB and IBR are phase currents. And voltage यहाँ पे mention नहीं किया है, but क्योंकि बहुत dense हो जाता फिगर. So VRY, VYB and VBR are phase voltages. Okay. So जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है वहां पे जो क्वांटिटीज है वो फेस क्वांटिटीज है. मींस यहाँ के करंट और वोल्टेज जो है वो फेस करंट एंड फेस वोल्टेजेस. नाउ एट राइट हैंड साइड द क्वांटिटीज आर लाइन क्वांटिटीज. सो IR, IY and IB are three currents. These are line currents because in line R current IR is flowing, Y में current IY is flowing, B में current IB is flowing, and voltages are VRY, VYB and VBR. These are voltages, line voltages. So simply remember that at left hand side the quantities are phase quantities. मतलब यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन में जो भी क्वांटिटीज है वोल्टेज एंड करंट वो फेज के होंगे, और राइट हैंड साइड में क्वांटिटीज आर लाइन क्वांटिटीज. मींस यहाँ पे जो भी वोल्टेज और करंट है वो आपके लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट होंगे. सो इट इज द फिगर. नाउ वी हैव टू गेट द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज क्वांटिटीज. तो यहाँ पे ये जो लाइन क्वांटिटीज है मतलब लाइन वोल्टेज और करंट है, और फेस क्वांटिटीज है मतलब फेस वोल्टेज एंड करंट है, इनके बीच का रिलेशन निकालना है. तो सिंपली देखिए यहाँ पर IRY, IYB and IBR, these are mutually equal because in a balanced system the three phase currents are equal. मीन्स आपस में इक्वल होगी. It is equal to I phase. Okay, it is equal to I phase, and here the currents at line IR, IY and IB, these are mutually equal, and it is these currents can be written as I line. Okay, but जो फेस करंट है वो लाइन करंट के इक्वल नहीं है, वहां पे उनके बीच कुछ रिलेशन आएगा, वो हमको निकालना है. ओके, सो IRY, YB, BR are phase currents, IR, IY, IB are line currents, and these are not equal basically. What about the voltage? See, VRY, R से लेके Y तक का वोल्टेज, यहां से कनेक्शन ले जाए, this is R and this is Y. So this RY is phase voltage and this RY is line voltage. So it is in parallel. Okay, and there is no element in between this. So this point and this point the voltage is same, and at this point and this point the voltage is same. So ये वाला ब्रांच का वोल्टेज और ये वाली ब्रांच का वोल्टेज क्या होगा? इक्वल. मींस फेस वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज. VRY is phase voltage here and VRY is line voltage here. Both are same. Now in case of VYB, look, Y is here and B is here. So it is also parallel. ये Y connection यहाँ पे आ रहा है और B ही यहाँ से आ रहा है बाहर. So Y to B, the voltage from Y to B is VYB. It is of phase here and it is of line here. Both are equal. Okay, so phase voltage is equal to line voltage here also. Now VBR, so B का वोल्टेज यहां तक आ रहा है. देखिए B का पॉइंट यहां से यहां तक आ रहा है,
it is B, and it is R. So VBR, this branch, the voltage of this branch is equal to the voltage VBR, line voltage. This simply means that in this connection, the line voltage is equal to phase voltages. Okay. In a three-phase delta connection, the line voltages are equal to phase voltages. So what we have to do, we have to get the relation between the currents, line and phase currents, which are not equal. So यहाँ पे तीनों करंट को मैं प्लॉट कर रहा हूं. इट इज IR, IY and IB. Actually, we are plotting here the phase currents, VRY. Here it is IB. So we are plotting phase current. So the currents are IRY, IRY. Same in case of star connection. लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वहां पे फेस वोल्टेज पहले प्लॉट किए थे. हियर इट इज IRY, IYB, IYB and it is IBR. Okay. So these are three phase currents. Now apply Kirchhoff's current law at this node. Okay. So these are two currents outgoing, IR plus IRY minus IBR. राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो IBR आ जाएगी, IR इज इक्वल टू आ जाएगा IBR जो आ जाएगी प्लस की, और IRY आ जाएगा माइनस का. KCL लगाएं सिंपली, एक में लिख दे रहा हूं IR प्लस IRY माइनस IBR इक्वल टू 0. इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो IR इज इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड पे जाने का पर IBR प्लस का और RY माइनस का. ओके. सो IBR प्लस का है यहां पर और RY माइनस का, तो रिवर्स लेना पड़ेगा. इसको ठीक नेगेटिव डायरेक्शन में लिया. सो इट इज माइनस ऑफ IRY. अब इन दोनों को फेजर सम निकालना है तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये इसके ठीक पैरेलल एक लाइन ली यहां से एंड एक लाइन इस फेजर के पैरेलल लिया. सो दिस इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. इन दोनों का समेशन जो आएगा वो आएगा क्या, IR. ओके. इट इज IR. इट इज लाइन करंट. इट इज लाइन करंट. नाउ इन केस ऑफ IY ऑल्सो, देखिए इस नोड पर, सी एट दिस नोड IY is outgoing, IYB is outgoing and IRY is incoming.
सो इसकी भी इक्वेशन लिखते हैं, आई वाई प्लस आई वाई बी माइनस आई आर वाई इक्वल टू 0। यहां से भी देखेंगे, सॉल्व करेंगे, सो आई वाई आ जाएगा, जो आई वाई होगा आई आर वाई राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, वाई बी माइनस का हो जाएगा। तो ऐसे ही यहां पर आई वाई निकालने के लिए आई आर वाई तो है ही है, जैसे आई आर वाई, और वाई बी को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। इट इज माइनस ऑफ आई वाई बी अगेन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे यहां पर, तो इसके पैरेलल एक लाइन, ये इसके पैरेलल, इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन, एक और वेक्टर इसके पैरेलल, यहां भी अबाउट पैरेलल, the resultant is now IY. I Y. Okay. Now in case of IB, here also I at this node apply KCL. So IB is outgoing, IB is outgoing, plus IBR is also outgoing. माइनस आई वाई बी इनकमिंग है ये, इक्वल टू 0। जब राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो आई बी आर को माइनस में लाना है, आई बी आर को रिवर्स में लेकर आए, तो ये हो गया माइनस ऑफ आई बी आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, माइनस ऑफ आई बी आर। नाउ द फेजर सम of these two according to law of parallelogram, it is IB, it is IB. ओके, सो एक बार फिर से ध्यान से देख लें यहां पर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, तीन वोल्टेज फेस वोल्टेज को प्लॉट किया, ड्रॉ किया, 120 डिग्री आउट ऑफ फेस से तीन, ओके, ये तीन फेस वोल्टेज थे। फिर इनको सॉल्व करके तीन लाइन, सॉरी वोल्टेज कह रहा हूं, करंट थे, और यहाँ पे तीन
लाइन करंट ये वाली है। ओके, सो पहले फेस करंट और फिर ये लाइन करंट। अब अपन निकालते हैं आई आर इज इक्वल टू आई आर। आर का केस लेते हैं अपन। आई आर, ये वाला पैरेललोग्राम उठाते हैं। कौन सा वाला? ये वाला। इसमें एक फॉर्मूला है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, आई वी आर स्क्वायर प्लस आई आर वाई स्क्वायर प्लस 2 कोसाइन ऑफ प्लस 2 आई बी आर and IRY cos of cos यहां पे जाएगा 60 डिग्री, okay, 60 because this angle is 60, this angle is 60, it is bisector, this is total 120 and its bisector is 60. So these are mutually equal. IR is what? It is line current, so IL equal to this is IPH square plus again it is also phase current I PH square plus 2 times of I PH square and cos 60 होता है 1/2, so it is 1/2, okay, 2 sorry cos, here it is cos, basically cos 60 is 1/2, okay, now right, so 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ आई पी एच स्क्वायर हो गया। फाइनली रिलेशन आया आई एल इक्वल टू √3 टाइम्स √3 टाइम्स IPH. Okay, IPH is equal to IL by √3. So this is the relation. Okay, so these are two relations. First is of voltage. So voltages are same and current में जो relation है वो IL is equal to √3 I phase है या I phase is equal to line current by √3. This we have to remember. So in 3 phase delta connection voltages equal है और current के लिए हमने क्या किया,
फेजर ड्रॉ किया। तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।